Good morning students. I am Sonu ma'am, your SS teacher from first class. Today we will do better lesson number 14. Answer the following question. ANSWER answer. TH the FOLLOWING following. QUESTIONS answer. Question. Answer the following question. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. Let we start question number first. Name any three things that you see in the sky. NAME name ANYNE THREE THINGS things THAT that YOUSEEC IN THE the SKY sky. Name any three things that you see in the sky. कोई भी तीन चीजों के नाम बताओ जो आपको आकाश या आसमान में दिखाई देती हैं. आंसर इज सन, मून, स्टार्स. SUN sun, MOON moon, STARS stars. Sun means सूरज, moon means चांद, star means तारे. Name any three things that you see in the sky. NAME name ANYNE THREE THINGS things THAT that YOUSEEC IN THE the SKY sky. Name any three things that you see in the sky. कोई भी तीन चीजों के नाम बताइए जो आपको आसमान में या आकाश में दिखाई देती है. आंसर इज फर्स्ट है सन, SUN सन. SUN सन, सन मीन्स सूरज, सन मीन्स सूरज. सेकेंड है मून, MOON मून, MOON मून, मून मीन्स चांद, मून मीन्स चांद. थर्ड है स्टार्स, STARS स्टार्स, STARS स्टार्स, स्टार मीन्स तारे, स्टार मीन्स तारे. लेट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. व्हाट आर क्लाउड्स. WHAT व्हाट, ARER CLOUDS क्लाउड्स. व्हाट आर क्लाउड्स कि बादल क्या है. WHAT व्हाट, ARER CLOUDS क्लाउड्स. व्हाट आर क्लाउड्स कि बादल क्या है. आंसर इज क्लाउड्स आर व्हाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई. CLOUDS क्लाउड्स, ARER WHITE white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN THE the SKY sky. Clouds are white cotton like things फ्लोटिंग इन द स्काई. बादल क्या है. एक सफेद रूही की तरह, रूही मतलब कॉटन मीन्स रूही की तरह है एक चीज, और वो पूरे दिन आसमान में घूमते रहते हैं. फ्लोटिंग मीन्स घूमना. व्हाट आर क्लाउड्स. क्लाउड्स आर व्हाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई. CLOUDS क्लाउड्स, ARER WHITE white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN THE the SKY sky. Clouds are white cotton like things floating in the sky. I will be repeat again question number 1. Name any three things that you see in the sky. NAME name ANYNE THREE THINGS things THAT that YOUSEEC IN THE the SKY sky. Name any three things that you see in the sky. कोई भी तीन चीजों के नाम बताओ जो आपको आसमान में दिखाई देती है. नंबर फर्स्ट है सन, SUN सन, SUN सन. सेकेंड है मून, MOON मून, MOON मून. थर्ड है स्टार, STARS स्टार, STARS स्टार. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है व्हाट आर क्लाउड्स. व्हाट आर क्लाउड्स की बादल क्या है. क्लाउड्स आर व्हाइट कॉटन लाइक थिंग्स फ्लोटिंग इन द स्काई. CLOUDS क्लाउड्स, ARER WHITE white, COTTON cotton, LIKE like, THINGS things, FLOATING floating, IN THE the SKY sky. Clouds are white cotton like things floating in the sky. देखो बेटा, अभी मैंने आपको कराया है इन SS लेसन नंबर 14. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए. Question number first and second. Do in your SS fair notebook. Writing should be neat and clean. Thank you. Have a nice day.
Good morning students, I am Sonu ma'am, your GK teacher from first class. Today we will do बेटा बेसिक क्वेश्चन आंसर कि हम जो डेली यूज में क्वेश्चन आंसर करते हैं मीन्स प्रश्न उत्तर, वो आज हम करेंगे. लेट वी स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. व्हाट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? WHAT what, IS is, TH is the, FAS TEST fastest, MEAN mean, S means, OF of, TRANSPORT port, transport. What is the fastest means of transport? Answer is aeroplane. AEROPLANE aeroplane. AEROPLANE aeroplane. What is the fastest means of transport? WHAT what, IS is, TH is the, FASTEST fastest, MEANS means, OF of, TRANSPORT port. What is the fastest means of transport? Answer is aeroplane. AEROPLANE aeroplane. Second question is who cures you when you fall ill? WHO who, CURES cures, YOUU, WHEN when, YOU, FALL fall, ILL ill. Who cures you when you fall ill? Answer is doctor. DOCTOR doctor. DOCTOR doctor. Who cures you when you fall ill? Answer is doctor. DOCTOR doctor. Next question number third. How many sense organs do we have? HOW how, MANY many, SEN SE sense, ORGANS organs, DO WEV HAVE have. How many sense organs do we have? Answer is 5. FIVE 5. FIVE 5. How many sense organs do we have? HOW how, MANY many, SEN SE sense, ORGANS organs, DO WEV HAVE have. How many sense organs do we have? Answer is 5. FIVE 5. FIVE 5. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा हाउ मैनी डेज इन ए वीक? हाउ मैनी डेज इन ए वीक? HOW how, MANY many, DAYS days, IN in, A, WEEK week. How many days in a week? HOW how, MANY many, DAYS days, IN in, A, WEEK week. How many days in a week? Answer is 7. SEVEN 7. SEVEN 7. How many days in a week? Answer is 7. SEVEN 7. Question number 5 है who brings letter for us? WHO who, BRINGS brings, LETTERS letters, FOR for, US us. Who brings letters for us? Answer is postman. POSTMAN man. Postman. Who brings letter for us? Answer is postman. POSTMAN man. Postman. I will be repeat again. Question number first. What is the fastest means of transport? What is the fastest means of transport? Answer is aeroplane. AEROPLANE aeroplane. AEROPLANE aeroplane. Second question है who cures you when you fall ill? Who cures you when you fall ill? Answer is doctor. DOCTOR doctor. DOCTOR doctor. Who cures you when you fall ill? Doctor. DOCTOR doctor. Question number 3 है how many sense organs do we have? How many sense organs do we have? Answer is 5. FIVE 5. FIVE 5. How many sense organs do we have? Answer is 5. Question number 4 है how many days in a week? How many days in a week? Answer is 7. SEVEN 7. SEVEN 7. How many days in a week? Answer is 7. SEVEN 7. Question number 5 है who brings letter for us?
Who brings letter for us? Postman. Postman. Man. Postman. Who brings letter for us? Postman. 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 देखो बेटा, अभी मैंने जीके में आपको कराया है बेसिक क्वेश्चन आंसर 1 to 5. डू इन योर जीके फेयर नोटबुक. राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. थैंक यू. हैव ए नाइस डे. Good morning students, I am Sonu ma'am, your math teacher from first class. Today we will do beta table of 8 and 9. टेबल ऑफ 8 and 9. आज हम क्या करेंगे? टेबल किस किस की? 8 और 9 की. लेट वी स्टार्ट. टेबल ऑफ 8. 8 1 जा 8. 8 1 जा 8. 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 8. 8 1 जा 8. 8 2 जा 16. 8 2 जा 16. 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16. 8 2 जा 16. 8 3 जा 24. 8 3 जा 24. 8 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 24. 8 3 जा 24. 8 4 जा 32. 8 4 जा 32. 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 32. 8 4 जा 32. 8 5 जा 40. 8 5 जा 40. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40. 8 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 40. 8 5 जा 40. 8 6 जा 48. 8 6 जा 48. 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48. 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 48. 8 6 जा 48. 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56. 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 56. 8 7 जा 56. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64. 8 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 64. 8 9 जा 72. 8 9 जा 72. 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 72. 8 मल्टीप्लाई बाई 9 इज इक्वल टू 72. 8 9 जा 72. 8 10 जा 80. 8 10 जा 80. 8 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 80. 8 multiplied by 10 is equal to 80. 8 10 ja 80. I will be repeat again table of 8. 8 1 ja 8. 8 1 ja 8. 8 2 ja 16. 8 2 ja 16. 8 3 ja 24. 8 3 ja 24. 8 4 ja 32. 8 4 ja 32. 8 5 ja 40. 8 5 ja 40. 8 6 ja 48. 8 6 ja 48. 8 7 जा 56. 8 7 जा 56. 8 8 जा 64. 8 8 जा 64. 8 9 जा 72. 8 9 जा 72. 8 10 जा 80. 8 10 जा 80. Let we start table of 9. 9 1 जा 9. 9 1 जा 9. 9 multiplied by 1 is equal to 9. 9 multiplied by 1 is equal to 9. 9 2 जा 18. 9 2 जा 18. 9 multiplied by 2 is equal to 18. 9 multiplied by 2 is equal to 18. 9 3 is 27. 9 3 is 27. 9 multiplied by 3 is equal to 27. 9 multiplied by 3 is equal to 27. 9 3 is 27. 9 4 is 36. 9 4 is 36. 9 multiplied by 4 is equal to 36. 9 multiplied by 4 is equal to 36. 9 4 is 36. 9 5 is 45. 9 5 is 45. 9 multiplied by 5 is equal to 45. 9 multiplied by 5 is equal to 45. 9 6 is 54. 9 6 is 54. 9 multiplied by 6 is equal to 54. 9 multiplied by 6 is equal to 54. 9 6 is 54. 9 7 is 63. 9 7 is 63. 9 multiplied by 7 is equal to 64. 9 multiplied by 7 is equal to 64. 9 7 is 63. 9 7 is 63. 9 8 is 72. 9 8 is 72. 9 multiplied by 8 is equal to 72. 9 multiplied by 8 is equal to 72. 9 9 is 81. 9 9 is 81. 9 multiplied by 9 is equal to 81. 9 multiplied by 9 is equal to 81. 9 9 is 81. 9 10 is 90. 9 multiplied by 10 is equal to 90. 9 multiplied by 10 is equal to 90. 9 10 is 90. I will be repeat again table of 9. 9 1 is 9. 9 1 is 9. 9 2 is 18. 9 2 is 18. 9 3 is 27. 9 3 is
27, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 10 जा 90। देखो बेटा, अभी मैंने आपको मैथ में कराया है टेबल ऑफ 8 एंड 9। डू इन योर मैथ फेयर नोटबुक, राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, कल की वीडियो में हमने पाठ 26 पढ़ा, हमारा देश कविता। आज हम उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। देखिए बेटा, प्रश्न नंबर 3 है हमारा, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। प्रश्न नंबर का है, हमारे देश का क्या नाम है? तो बेटा, हमारे देश का नाम क्या है? भारत है, भरत है या दिल्ली है? तीनों में से हमारे देश का नाम क्या है? भारत। तो हम भारत के सामने जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ख, खेत खलियान किससे भरे हैं? जो खेत हैं वो किससे भरे हुए हैं? अन्न से, भोजन से या धन से? तो बेटा, खेत में क्या होते हैं? अन्न। ठीक है, तो अन्न के सामने हम जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर ग, भारत के उत्तर में क्या है? तो बेटा, भारत के जो उत्तर है उसमें क्या है? सागर है, पर्वत है या नदियां हैं? क्या है भारत के उत्तर में? सागर। क्या है? सागर। तो हम सागर के सामने सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर घ, भारत के लोग किस में विश्वास रखते हैं? शांति दया में, पढ़ने लिखने में या खेल कूद में? किस में करते हैं? किस में विश्वास रखते हैं? शांति और दया में। ठीक है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगाएंगे। ओके। प्रश्न नंबर 4, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाओ। प्रश्न नंबर क, धरती पर हरियाली नहीं है, तो धरती पर क्या है? हरियाली है। ठीक है, तो ये क्या है? बिल्कुल गलत है ये, तो हम इसके सामने क्रॉस लगाएंगे। प्रश्न नंबर ख, यहाँ की नदियों में गर्म जल होता है? नहीं, शीतल जल होता है। ये भी क्या है? गलत है। भारत देश के मस्तिष्क पर हिमालय पर्वत है? ये बिल्कुल सही है कि भारत देश के मस्तिष्क पर हिमालय पर्वत है। भारत देश सब देशों से न्यारा है? ये सही है कि भारत देश सभी देशों से न्यारा है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर क, हमें अपना देश कैसा लगता है? तो बेटा, हमें अपना देश कैसा लगता है? प्यारा। कैसा लगता है? प्यारा और सभी देशों से न्यारा। प्रश्न नंबर ख, हम अपने देश को कैसे संवारेंगे? तो बेटा, हम अपने देश को किस प्रकार संवारेंगे? शांति और दया की राह अपनाकर। ठीक है, शांति और दया को अपनाकर हम अपने देश को संवारेंगे। हिमालय पर्वत कहाँ है? जो हिमालय है वो कहाँ है? भारत के मस्तिष्क पर। ठीक है, भारत देश के मस्तिष्क पर। भारत देश के मस्तक पर। ठीक है, हमारे देश के खेत खलियान कैसे हैं? तो हमारे देश की जो खेत खलियान है वो कैसे हैं? हरे भरे। हरे भरे और अन्न से भरे। हरे भरे
और अन्न से भरे। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे प्रश्नोत्तर। आपको इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में साफ सुंदर राइटिंग में करना है और याद भी करना है। ओके बेटा, धन्यवाद। Morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is English grammar for class first. So let's start it. Today we do chapter 12, that is this and that. this मतलब यह, that मतलब वह। this और that इसका यूज़ कहाँ होता है, कैसे किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। this is used for near single object। this का यूज़ हम कहाँ करते हैं, एक तो चीज़ नियर हो, हमारे पास में हो, और सिंगल ऑब्जेक्ट कोई एक चीज़ के लिए ही इसका यूज़ करते हैं this का। एक से ज़्यादा के लिए दिस का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट है दैट इज़ यूज्ड फॉर डिस्टेंट सिंगल ऑब्जेक्ट। और दैट का यूज़ भी हम किसके लिए करते हैं, एक ही चीज़ के लिए करते हैं, सिंगल चीज़ के लिए। लेकिन वो कैसी चीज़ के लिए होता है, डिस्टेंट यानी दूर रखी हुई चीज़ के लिए होता है। तो आर यू अंडरस्टैंड, दोनों दिस और दैट ओनली सिंगुलर चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। दिस और दैट एक ही चीज़ होनी चाहिए, तब हम दिस और दैट का यूज़ करते हैं। लेकिन दिस कोई चीज़ अगर हमारे पास रखी हो तो दिस का यूज़ करते हैं, लेकिन दूर हो तो उस चीज़ के लिए हम दैट का यूज़ करते हैं। लेट्स रीड सम सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंस हम रीड करेंगे। दिस इज़ अ किड, यह एक मेमना है। किड मीन्स बकरी का बच्चा। दिस इज़ अ किड यानी ये हमारे आस पास में है। नेक्स्ट है दैट इज़ एन ऐश। ये ऐश जो है गधा बहुत दूर है, तो ये हम क्या यूज़ कर रहे हैं, दैट का यूज़। दैट इज़ एन ऐश। नेक्स्ट है दिस इज़ अ फ्लावर। जो भी है अपने हाथ में कोई चीज़ है तो बहुत हमारे नज़दीक है, तो किसका यूज़ कर रहे हैं, दिस। दिस इज़ अ फ्लावर। दिस मतलब यह, इज़ है ए यानी एक, फ्लावर यह एक फ्लावर है। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ बटरफ्लाई। तो ये बटरफ्लाई हमसे बहुत दूर है, तो हमने किसका यूज़ किया, दैट। दैट इज़ अ बटरफ्लाई। दैट यानी वह, इज़ यानी है, ए यानी एक, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली, वह एक तितली है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ जिराफ। तो जिराफ हमारे पास में है, तो हमने क्या यूज़ करा, दिस का। दिस इज़ अ जिराफ। दिस का मतलब क्या होता है, THIS दिस। दिस का मतलब यह, इज़ है, ए एक, जिराफ यानी जिराफ, यह एक जिराफ है। नेक्स्ट इज दैट इज़ अ लिजार्ड। दैट इज़ अ लिजार्ड। तो ये हमारे लिजार्ड बहुत दूर है, तो हमने क्या कहा, दैट इज़ अ लिजार्ड। किसका यूज़ करा है हमने, दैट का यूज़ करा है। दैट यानी वह, इज़ यानी है, ए यानी एक, और लिजार्ड यानी छिपकली, वह एक छिपकली है। Now we do the worksheet of this chapter, that is chapter 12. Fill in the blanks with this and that. This और that का यूज़ करके हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। डैश इज़ एन एग कप। तो यह एक एग कप है, तो ये हमारे पास में है, तो हम लिखेंगे दिस। क्या लिखेंगे, दिस, THIS। फिल हेयर दिस। दिस इज़ एन एग कप। यह एक एग कप है। नेक्स्ट है डैश इज स्नो। तो ये हमारे से दूर में है, तो क्या राइट करेंगे हम, दैट। क्या राइट करेंगे, दैट इज स्नो। वह क्या है, वह बर्फ है, दैट इज स्नो। दिस इज रिंग। तो ये हमारे पास में है, तो क्या लिखोगे, दिस। क्या राइट करोगे, दिस। दिस इज अ रिंग, THIS। दिस इज अ रिंग। यह एक रिंग यानी अंगूठी है। तो मंकी हमसे काफ़ी दूर है, तो क्या राइट करेंगे, दिस। क्या राइट करो, सॉरी, दूर है, दूर वाली चीज़ों के लिए दैट का यूज़ करते हैं, तो राइट करोगे दैट, THAT। दैट इज़ अ मंकी। वह एक मंकी है, दैट इज़ अ मंकी। एंड हट, हट हमारे
पास में है तो क्या राइट करेंगे, दिस, THIS, दिस इज़ अ हट, यह एक हट है, यह एक झोपड़ी है, दिस इज़ अ हट। डैश इज़ ए प्लेसेस, डैश इज़ अ प्लेसेस, वह एक जगह है, तो ये हमसे दूर है, तो ये इधर भी राइट करोगे, दैट, THAT, that is a places, that is a places. Okay dear student, read this chapter 12 in English grammar and do this worksheet properly with proper understanding of this and that, this और that का आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कहाँ यूज़ करते हैं, and complete this worksheet and do this work in your fair English notebook. Thank you and have a nice day. Good morning dear student, welcome to our YouTube online classes. Let's we start. Subject is science for class first. So let's start it. Today we read chapter 11, that is air everywhere. In previous video we read half of chapter, so today we start reading of remaining chapter. So today we started reading from air has weight, means air जो हवा होती है उसका weight होता है, भार होता है. Take an empty balloon in one hand and a balloon filled with एयर इन द अदर हैंड. क्या करना है, एक खाली बैलून हमें लेना है एक हाथ में और दूसरे में एयर फिल किया हुआ बैलून लेना है दूसरे हाथ में. जस्ट लाइक दैट, एक में खाली और एक में एयर फिल वाला बैलून लेना है. यू विल फाइंड दैट द एम्प्टी बैलून इज़ लाइटर दैन द बैलून फिल्ड विथ एयर. तो तुम्हें क्या महसूस होगा कि जो खाली बैलून है, बिना हवा वाला जो बलून है, वो वेट में हल्का होगा किसके कंपैरिजन में, जिसमें एयर फिल है उसके कंपैरिजन में. दिस शो दैट एयर हैज़ वेट, ये क्या शो करता है कि एयर का अपना वेट होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ विंड. मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. जो मूव करती है एयर यानी एयर तो प्रेजेंट हर जगह होती है, लेकिन जब वो एयर मूव करती है यानी चलती है तो उस एयर को हम विंड कहते हैं. व्हेन विंड ब्लोज लाइटली, जब विंड हल्की सी चलती है तो वी कॉल इट ब्रिज, तो हम उसे क्या कहते हैं, ब्रिज. जो धीरे धीरे हवा चलती है उसको हम ब्रिज बोलते हैं. एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड स्टॉर्म, और जो बहुत तेज़ हवा चलती है उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं. स्टॉर्म मीन्स तूफान. नेक्स्ट इज़ यूजेस ऑफ एयर. एयर के क्या क्या यूज़ हैं. एयर हैज़ मेनी यूजेस सच एज, एयर के बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स नीड टू ब्रेथ एयर टू लिव. जो हम लोग हैं, पीपल यानी लोग, एनिमल्स जानवर और प्लांट्स पेड़ पौधे, इन सभी को किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है. टू ब्रेथ यानी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. टू लीव, और जिसके कारण हम जीवित हैं. अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे और बिना सांस के हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते हैं. नेक्स्ट है मूविंग एयर मूव्स डिफरेंट थिंग्स सच एज विंड मिल्स, सेल बोट एंड काइट्स. और मूविंग एयर, जो मूविंग एयर मीन्स विंड. विंड किस में हेल्प करती है, मूव करने में अलग अलग चीज़ों को. जैसे विंड मिल जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको विंड की हेल्प से ही मूव किया जाता है. सेल बोट जो वाटर में मूव करती है तो वो उसकी विंड की हेल्प से ही करती है. एंड नेक्स्ट है काइट, पतंग जो हम उड़ाते हैं वो भी किसकी हेल्प से मूव करता है, विंड की हेल्प से. नेक्स्ट है इन ऑर्डर टू यूज़ सम थिंग्स वी नीड टू फिल दैम विथ एयर फर्स्ट. और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यूज़ करने से पहले हमें उसमें एयर डालनी ज़रूरी होती है. जैसे बलून हो गया, फुटबॉल हो गया, टायर हो गया. तो इन सब का यूज़ हम तभी करते हैं जब हम उसमें एयर डालते हैं. नेक्स्ट है
मूविंग एयर और ब्रिज हेल्प टू ड्राई वेट क्लॉथ्स। मूविंग एयर, जो मूविंग एयर है वो किस में हेल्प करती है? अपने कपड़ों को सुखाने के लिए, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए विंड का यूज़ होता है। एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, और एयर का यूज़ किस में होता है? बर्निंग के लिए भी होता है, जलाने के लिए भी। जब आग हम जलाते हैं तो वहाँ पे एयर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो हमारी क्या होगी? बर्निंग भी नहीं हो पाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, रीड दिस चैप्टर completely. Thank you and have a nice day. Hello student, good morning. I am Sangeeta ma'am, teacher of first class at MLP International School, Rajpura. Dear student, आज हम हिंदी रीडर में पाठ 26, पाठ का नाम है देश हमारा। कविता है बेटा, हमारे देश के बारे में बहुत अच्छी कविता है, ध्यान से पढ़ना। भारत देश हमारा है। हमारा कौन सा देश है बेटा? भारत। सब देशों से न्यारा है, सभी देशों से अनोखा है। न्यारा मीन्स होता है अनोखा। सभी देशों से अलग प्रकार से हमारा देश है। उच्च हिमालय मस्तक इसका जो हिमालय जो है वो हिमालय की तरह ऊंचा माथा है इसका, ठीक है। मस्तिष्क मीन्स होता है माथा। ऊंचा हिमालय है, मस्तिष्क इसका उच्च हिमालय की तरह इसका माथा है। पग पर छलके सागर है, इसके पग पर जो सागर है, ठीक है, वो छलकता है। नदियां भरी है शीतल जल से, और जो नदियां हैं वो शीतल मीन्स ठंडे जल से भरी हुई है। झीले झरने गागर है, और झरने जो झीलें हैं वो गागर है मीन्स बहती रहती है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, जो वृक्ष है, वृक्षों पर लटके मीठे फल लटकते हैं। धरती पर हरियाली है, और हमारे भारत में पेड़ों पर मीठे फल लगे रहते हैं और धरती पर हमेशा हरियाली रहती है। इस प्रकार का हमारा भारत देश है, जिसमें नदियाँ पानी से निर्मल शीतल और ठंडे पानी से बहती रहती है। झरनों में पानी झरता रहता है। खेत खलियान है भरे अन्न से, हमारे जो खेत हैं, खलियान है, खेत हैं, वो अन्न से, भिन्न भिन्न प्रकार के अन्न से भरे होते हैं। हर घर में खुशहाली है, और सभी के घर में क्या है? खुशहाली है। देश हमें प्राणों से प्यारा, हमारा जो देश है भारत वो हमें प्राणों से भी प्यारा है। इसको सदा संवारेंगे, इसकी सदा हम क्या करेंगे? रक्षा करेंगे, सजाएंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। शांति और दया की, ठीक है, शांति और दया की राह को हम अपनाकर इस जग को आदर्श स्वर्ग बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। बच्चे विनती कर रहे हैं कि भारत देश जो हमारा है वो बहुत प्यारा है और सभी देशों से एकदम अनोखा है। एक बार फिर से देखिए बेटा, कविता बड़ी अच्छी है। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। हमारा देश क्या है? भारत है, और वह सभी देशों से अनोखा भी है। उच्च हिमालय मस्तक इसका, पग पर छलके सागर है। हमारा जो भारत है इसका मस्तिष्क ऊंचे हिमालय की तरह है, और इसके पग पर छलके सागर है। इसके पग पग पर सागर है। नदियां भरी है शीतल जल से, नदियां जो है वो ठंडे जल से भरी रहती है। झीले झरने गागर है, और झरने झीलें जो है वो पानी से भरी रहती है। पेड़ों पर लटके मीठे फल, वृक्ष हैं, पेड़ जो हैं उन पर मीठे फल लटके रहते हैं। धरती पर हरियाली है, और धरती पर हमेशा हरियाली रहती है। खेत खलियान है भरे अन्न से, जो खेत हैं वो हमेशा भिन्न भिन्न प्रकार के अन्नों से भरे रहते हैं। हर घर में खुशहाली है, और हर घर में हमेशा खुशहाली रहती है। देश हमें प्राणों से प्यारा, इसको सदा संवारेंगे। हमारा जो भारत देश है वो हमें अपने प्राणों से भी, अपनी जान से भी प्यारा है। इसको हम सदा सजाएंगे, संवारेंगे, इसकी रक्षा करेंगे। शांति दया की राह अपनाकर जग का आदर्श बनाएंगे। शांति और दया की राह को अपनाकर, शांति और दया की राह को
अपनाकर जग का आदर्श, जग को स्वर्ग और जग को आदर्श बनाएंगे। भारत देश हमारा है, सब देशों से न्यारा है। भारत देश हमारा है और वह सभी देशों से अनोखा और प्यारा है। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी कविता। आपको कविता अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, शब्दार्थ देखिए बेटा। न्यारा मीन्स क्या होता है, कविता में हमने पढ़ा अनोखा। न्यारा मीन्स अनोखा। अन्न मीन्स अनाज, जो हमारे खेतों में होता है ना, अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा, सरसों जो भी होती है वो क्या है, अन्न है। मस्तिष्क मीन होता है माथा। ठीक है, आदर्श मीन्स नमूना। आदर्श मीन्स नमूना। न्यारा मीन्स अनोखा, अन्न मीन्स अनाज, मस्तिष्क मीन्स माथा, आदर्श मीन्स नमूना। तो बेटा कविता को अच्छे से पढ़ना है और शब्दार्थ को अपनी नोटबुक में साफ सुंदर राइटिंग में करना है। ओके बेटा, धन्यवाद।